So today we will review Lipset condition that you have studied in previous lecture. I'm taking one more example of Lipset condition. So let's verify this function f of ty equal to, let us say, 3y plus 2. So this is my f t y. Although there is no t in right hand side, still I can write this. Okay. So how you check Lipset condition? So you take 2 points ty1 and ty2 in given domain. Okay, so then you calculate the difference, that is fty1 minus fty2. So first one will be 3y1 plus 2. Then second one will be 3y2 plus 2. So I can write 3y1 minus y2. Okay, so this function satisfy a Lipset condition on any domain. Okay, so that is important. So on any domain, there is no t in right hand side. You can take any t. You can take any y. Okay, so what is Lipset condition? So you compute difference fty1 minus fty2 and relate this difference with y1 minus y2, and this is constant L. Okay, so on any domain with the constant 3. So I'm taking one more example. Let us take ty square. Then try to compute this difference fty1 minus fty2. Okay, so that will be t y1 square minus t y2 square. Okay, so factor of right hand side t will be common. So y1 plus y2 and y1 minus y2. So what you want? You want this y1 minus y2 on right hand side. I have not specified the domain. Okay, I am just reviewing what we have done previously. So you can specify the domain. So this f is not Lipset on, if I take, so let us say r cross r. Okay, so let us say t is unbounded. So t can take any value. These y1 and y2, they can take any value. So this will be not Lipset. So Lipset condition depends on domain. So what we can do, if I can take a finite domain like rectangle, and if this is finite, then you can say f satisfy a Lipset condition. So what I'm claiming here, so f is not Lipset on any on r cross r, but you can make, so however uh, f satisfy a Lipset condition on any rectangle, on any rectangle. So you can take any rectangle A, B,
cross CD. Okay. So this means T belongs to A to B. सर 1 मिनट ऊपर कर दो. And this is some C to D. So this will be the region. ऊपर मतलब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो. इसको ठीक है. स्क्रीन तो फिक्स है, मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर सकता ना अपनी स्क्रीन को. सर प्रीवियस पेज कह रही थी. प्रीवियस पेज जा रहे हो ना अच्छे से. ओके सर, हो गया सर. Okay, so this satisfy lifted condition on any rectangle. तो लिफ्टर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये डोमेन पे डिपेंडेंट होगा. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आर क्रॉस आर. ठीक है, एक्स वाई प्लेन. और ए बी क्रॉस सी डी ये भी लिखने का तरीका है. इसका मीनिंग है जो टी है वो ए और बी के बीच में है और वाई सी और डी के बीच में है. यानी कि अगर बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है तो आप क्या करोगे, यू विल रिप्लेस, यहाँ टी की जगह बी लिख दोगे, y1 प्लस y2 की जगह d लिख दोगे. ठीक है. सो then this function will satisfy Lipschitz condition on bounded domain, but this does not satisfy Lipschitz condition on any unbounded domain. So that we studied. I'm repeating this because in the beginning of first lecture there were many people who were absent. So quickly we will go back 1 or 2 lecture. So then we have studied Picard's method, that is the base of proving of next theorem. So the method of successive approximations. The method of successive approximation. So if you have written earlier, then no need to write, you can just recall. So we consider initial value problem. In short, I am writing IVP. So this is a first order differential equation in this form, dy by dt equal to f of ty, with one condition that you know the solution at t naught, which is y naught. Okay. So on region, I'm taking rectangular region. So t lies between t minus t naught less than a, y minus y naught less than b. Okay, so a and b both are positive numbers. So how this region will looks like? So if you simplify this t minus t naught less than a, so minus a से लेके प्लस a के बीच में है, तो t कहाँ लाई करेगा, a plus t naught to t naught minus a. So this is my region. T naught कहीं भी आपका पॉइंट, लेट्स से दिस इज t naught minus a and t naught plus a. Similarly, if you simplify y minus y naught less than b, so depending on the sign, so let us say y naught is here. Okay, so y naught plus b, and smaller will be, that can be below as well. So that depend on y naught. So that will be y naught minus b. So what is the common region? So just this is a common region. इनको ऊपर extend कर दो. Okay, so this is rectangular region. Okay, so in this region, t satisfy this inequality, and y naught minus b to y naught plus b. So this is a rectangular region. You can show with picture. Okay, so so this is t axis, this is y axis, I hope. So in this region, we will solve the differential equation on rectangular region.
तो सोल्यूशन निकालने का मीनिंग है जस्ट फाइंड वाई। वाई कैसे निकालना है? फाइंड इंटीग्रेशन। ओके, सो ऑन इंटीग्रेटिंग what I'm writing, so just integrate on this region, so separate the variable if you can do. So I'm integrating from y naught to some y, variable y. Okay, और राइट हैंड साइड में t नॉट टू t, यहाँ पे था f t y is a function of t then dt. Okay, so since t is in limit, so you can change inside variable. You just put some another dummy variable, just write s. t लिखोगे तो कोई बात नहीं, t भी लिख सकते हो. So if right hand side is integrable, you can find exact solution. But as you know, you cannot integrate every function, so this is not possible always. Okay, और right में y भी है, ठीक है. If separation of variable is possible, you can integrate, but this is not the case that you can always perform the integration. So what is the integral of left hand side? dy का integral y होगा, upper limit minus lower limit. Right hand side t naught to t fs ys ds. Solve for y, so yt equal to this. So this is called integral form of differential equation. This is called integral form of IBP. So either you solve the differential equation first, or you solve this second. So both are similar, and we will prove mathematically. So, and in fact both cases are similar. So if you can perform the integration, then you can find the solution. तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि आपने y निकालना है और y दोनों साइड में है. जैसे इसका मैं एग्जांपल लूं, इनको हम बोलते हैं इटरेटिव टेक्निक्स. जैसे आपने ये इक्वेशन है, इसका रूट निकालना है, या आप ये कह लो x इक्वल टू cos x, फाइंड x. तो x दोनों साइड है, x इधर भी है, x इधर भी है. आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, ठीक है. तो सो व्हाट वी डू, वी, ये आप अपने कैलकुलेटर पे भी ट्राई कर सकते हो. अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखो, रेडियन, डिग्री में नहीं, ठीक है. स्टार्ट विद 1, पहले 1 डालो, cos 1 निकालो, जो आंसर आया 0 पॉइंट समथिंग थिंग, उस आंसर को दोबारा यहां डाल दो. फिर जो आंसर है बार बार cos लगाते जाओ, जो आपका आंसर आए उस पे cos, रेडियन में बार बार cos. उस टाइम के बाद क्या होगा, जो आप इनपुट दोगे वो ही आउटपुट मिलेगा. तो मतलब x और cos x इक्वल हो गए. 15-20 बार करना पड़ेगा. वो पॉइंट आई थिंक 0.73 समथिंग है रेडियन मोड में. इफ यू अप्लाई cos ऑन दैट, यू गेट सेम आंसर. तो इनको हम बोलते हैं इटरेटिव टेक्निक. अब इटरेटिव का मीनिंग क्या है? रिपीट करना है आपने. अब रिपीट किसको करना है? एक नॉन वाई यहां फिट कर दो, जैसे मैंने कहा था, एक नॉन वैल्यू फिट करो, राइट हैंड साइड पॉसिबल हो जाएगा, वैल्यू निकाल लो, ठीक है. उसको आप कह दो पहली वैल्यू, दोबारा से यहां डाल दो, उसको को सेकंड वैल्यू. तो यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं यूजुअली कि n+1 या k+1, कि ये k+1 है और ये yk है, मतलब ये नया है, ये पुराना है. ओके, so these are iterative procedure. Then you have when you have implicit relation, we cannot proceed further, so we can start with non value. अब नॉन वैल्यू y की कौन सी पता है? नॉन हमें कौन सा पता है? y0 पता है. स्टार्ट विद y0.
तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकार्ड्स मेथड. इटरेशन मेथड. So this is iterative procedure. Iterative मतलब बार बार रिपीट करना है आपने प्रोसीजर. And you will see this iterative procedures, they are widely used in mathematics, not only to solve differential equation. You will study to find root finding problems, to solve a system of equations, to perform integral as well. So this is a broad category. तो इसमें करना क्या है? We start with, so I'm just recalling, you have written earlier. So we start with what we say, an initial approximation. अब उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्टअप वाले को इनिशियल गैस या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, या इसको इनिशियल गैस भी बोलते हैं, इनिशियल गैस. सो वी टेक, अब इनिशियल वैल्यू कौन सी पता है? y0 पता है. तो पिकार्ड में नोटेशन इनको phi1 phi2 यूज कर रहे हैं कि पहले को phi0 कह दो. आप y0 भी कह सकते हो, y0 y1 y2 y3 भी कह सकते हो. कई बुक्स इनको ये लिखते हैं y0 y1, y में लिखते हैं y1, बट कई बुक्स उनको लिखते हैं phi0 phi1 phi2 एटसेट्रा. तो y की वैल्यू ही है ये, ठीक है. y की वैल्यू, पहली वैल्यू कौन सी है? phi0t. देन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इसी को इंटीग्रल फॉर्म से लिखना है. देन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम 2 और 2 से सेकंड इक्वेशन से लिखने. सो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशंस आर, तो पहला मैं इधर phi1 लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में. नॉन वैल्यू फिट कर दो राइट हैंड साइड में. t0 to t, नॉन वैल्यू कौन सी थी? y0. y0 को y0 लिखना है या phi में लिखना है तो phi0, ठीक है. ये फिट कर दो, बट ये y0 ही है. यू कैन राइट y0 एज वेल. ओके, स्टार्ट विथ, वो सिमेट्री बनाने के लिए इसको phi0 लिखा है, जस्ट फिट y0. सो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, देन phi2 और phi1 को यहाँ फिट कर दो राइट में y की जगह. सो t0 to t fs y1 या y1 phi1s ds एटसेट्रा लिखते जाओ. phi2 phi3. तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे? phi k plus 1. जस्ट लिखने का तरीका है, एक लेफ्ट में एक ज्यादा लगा दो, इधर phi2 इधर phi1 है, तो एक ज्यादा एक कम. चाहे आप इसको k लिख दो तो राइट में आपने k माइनस k-1 हो जाएगा सर, एक कम हो जाएगा. हाँ, एक कम हो जाएगा. आप कैसे भी लिख सकते हो, नंबरिंग है, कहीं से शुरू कर लो. सो t0 to t fs phi ks ds. okay, so these are Picard's approximation that we have studied earlier. So quickly I am going to take one example. सर, इससे पहले जो हमने लिपशिट कंडीशन की थी उसके अंदर आपने ही लिखवाया था कि करली f कौन करली y इज नॉट कंटीन्यूअस. हाँ, वो भी एक आपने करवाया था, वो समझ नहीं आया सर. वो कंटीन्यूअस कैसे होगा या नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा? डेरिवेटिव कंटीन्यूअस कैसे होगा? हाँ जी सर, जो लिपशिट कंडीशन था उसमें आपने फंक्शन लिखाया था, एग्जांपल लिया था. देखो, फंक्शन की कंटिन्यूटी, अब मान लो f आपका ये t y है, ठीक है. ओके सर. डेरिवेटिव y के सेंस में क्या आएगा? t. इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ये भी फंक्शन ही है. फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो? दिस इज अगेन ए फंक्शन. डेरिवेटिव इज आल्सो ए फंक्शन. या तो आप वो डेफिनेशन लगा लो, बट हमारे कोर्स में तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको देखने से पता लग जाएगा. बेसिक फंक्शन होंगे साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, टी वाई एटसेट्रा, तो इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है आपने. हाँ, अगर मॉड है तो फिर आपने थोड़ा ध्यान रखना है. मॉड कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ये डेरिवेटिव क्या होगा इसका? डिफरेंशिएबल नहीं है. नो सर. नहीं. नो सर. तो आप कह रहे हैं ना कि करली f बाय करली y, दैट इज आल्सो अगेन ए फंक्शन. तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने. ओके सर. नहीं होगा तो हम दोबारा ट्यूट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. इसको वी विल
solve more examples there. So this is Picard's method. So I am going to take one more example. I hope previously हमने नहीं लिया था ये. Solve this. Y dash equal to 2 y plus 1. जो लोग absent थे they can note. So this is 5th lecture. ठीक है, तो पहले आपने क्या लिखना है? f क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो उसको. 2y plus 1. So this is my f, right hand side. और कई बार ना इक्वेशन को बच्चे, आप तो कर नहीं करोगे, बीटेक वाले बच्चे गलती करते हैं. मान लो उसने इक्वेशन ये लिख दी, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको ले लो बस f. So this is wrong. Okay, so firstly take everything on right hand side. So dy by dt equal to something. That something is f. और जो y के ब्रैकेट में है वो t की वैल्यू है 0 और y0 जो y की वैल्यू है that is 0 initially. So Picard's approximations are, Picard's, you can say, successive approximations are, एक बार हम जनरल फार्मूला लिख देंगे. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज y0 which is 0. ठीक है, स्टार्ट आपने यहां से करना है, फिर एक बार जनरल फार्मूला लिख दो 5k plus 1. अच्छा, k लगा देना, k नंबर है, मैं लिखना. सो k इज ए नंबर 0 1 2 etc. सो 5k plus 1 equal to y0. y0 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है ना. 0 t0 to t, 0 to t. व्हाट इज f? क्या लिखोगे f को? 2 y की जगह ys. क्या लिखेंगे? y को मैं 5k लिख रहा हूं, ये भी लिख सकते हो. y की जगह 5, ये बनेगा. सो k 0 1 2 etc. 2y plus 1. So these are successive approximations. कंफ्यूज ना करना, आप कोई बुक पढ़ोगे तो कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, y k plus 1, मतलब यहाँ पे वो लगा देता है y k plus 1 t, और यहाँ पे लिख देते हैं वो y k. ये मैं नोटेशन इसलिए यूज नहीं कर रहा, आप आगे में कोर्स पढ़ोगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें वो y1 y2 क्या कहता है कि इस पॉइंट पे सॉल्यूशन y0, इस अगले पॉइंट पे सॉल्यूशन y1, इस पे, उनको वो कहते हैं y1 अगले डिफरेंट पॉइंट पे सॉल्यूशन. तो हमारा क्या है, हम एक ही पॉइंट पे निकाल रहे हैं जनरल फार्मूला. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दोस y1 y2 y3. बाकी जो पिकार्ड का प्रूफ है उसमें भी 5 1 5 2 लिखा है. सो same notation, just replace y with 5. Okay, so just write few approximations. तो पहला क्या होगा, 5 1 t equal to 0 2 t 2 y0 कितना है, 0 ही है, 2 का इंटीग्रल कर दो, 2t आ गया. अगला अप्रोक्सीमेशन 2t square plus 2t. अभी आंसर फिट करोगे, 2t, t की जगह s, 2s plus 1 लिखा है, ठीक ही होगा. ठीक है, इसका इंटीग्रल कर लो. सो t स्क्वायर प्लस 2t, या उल्टा लिख लेते हैं, इसको छोटे को पहले लिख लेते हैं, जो पुराना था 2t plus t स्क्वायर. एंड सिमिलरली 5 3. अब जो आंसर आया y की जगह वो फिट कर दो, 2 times 2s plus s square plus 1. लेट मी नो द आंसर. कितना आएगा? सर 4t Sir, cubed by 3. 4t था तो क्यूब बोलो, बोले क्यूब. सर 2t 2t स्क्वायर आना plus चाहिए. 2t स्क्वायर होगा ऊपर वाले में. ऊपर वाले में 2t स्क्वायर. हाँ जी सर, सर, क्योंकि 2 2 into into 2s था. 2s है. 2t स्क्वायर ये यहाँ सर, ये ये सर, ये कितना आएगा?
Sir, 4t³ by 3. t क्यू बाई 4t 4t cube by 3. 40 by 3, okay, 4t etc. square plus t आएगा. Okay, so these are successive approximations. So one remark. तो मैंने कहा था कि so these will converge to some solution phi. तो इसमें हम देख भी सकते हैं हमारी इक्वेशन क्या थी, y dash equal to 2 y plus 1. सेपरेट द वेरिएबल, इंटीग्रेबल है ना ये तो. व्हाट विल बी इंटीग्रल, log of y plus 1 equal to 2t plus c. The initial condition when t equal to 0, y equal to 0, तो c आपका 0 आ गया. So therefore y plus 1 equal to e power 2t. तो y equal to e power 2t minus 1. इसका एक्सपेंशन करना, ये ऊपर वाला ये बनेगा. e power 2t का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 तो कैंसिल हो जाना है, 1 है नहीं वहां पे ना, ये 2t फर्स्ट टर्म, ये t स्क्वायर के साथ t क्यूब वाला सिंपलीफाई कर लेना, यही बनेगा एंड सो ऑन. तो अब पिकार्ड मेथड क्या है, so you can write the solution, or you can say solution of differential equation. They will have elementary functions like sine, cosine, etc. So they will be any continuous function, और उस फंक्शन को आप सीरीज फॉर्म में लिख सकते हो. What's Picard method is doing? Picard method picks the terms of the series. आप इसको एक्सपेंड करोगे, ये सोल्यूशन था मेरा e पावर 2t minus 1, एक्सपेंशन करो क्या आएगा इसका, 1 प्लस x e पावर x का by 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. कैंसिल हो गया, तो यही टर्म आ रही थी हमारी 2t प्लस 2t स्क्वायर एटसेट्रा. ये आपका पहला, अब 5 0 तो इसमें 0 था, वो तो आएगा नहीं 0, ठीक है, 5 0 0 है. 2t क्या था आपका, 5 1 था, ठीक है. जीरो ऐड कर दो यहाँ पे, सो 0 था 5 0, ये आपका था 5 1, और ये आपका था 5 2 एंड सो ऑन, और इन तीनों को इकट्ठा करोगे तो आपका 5 3 होगा. Okay, so Picard method picks the term of the series, and this is a very important and classical way to solve differential equation with one condition. और आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, यू कैन सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. दोनों में डिफरेंस आपको पता है, ठीक है. डिफरेंस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी, अगर आपने ये कंडीशन डाल दिया तो ये है IVP, दिस इज IVP, एंड इफ यू रिमूव द कंडीशन यू हैव ए डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो पिकार्ड मेथड इज सॉल्विंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सो अगर आपको y0 पता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आपको y0 नहीं पता यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, ठीक है. एक वैल्यू पता होनी चाहिए. फिर हमने जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि आप चाहे सॉल्व करो इसको फर्स्ट को, सो सॉल्विंग ऑफ 2 इंटीग्रल फॉर्म and solving of one differential equation, both are similar. So now I'm going to prove that theorem. A function phi is a solution. IVP. So please keep mute of the IVP. dy by dt equal to f of ty on any interval I, if and only
if and only if means you need to prove in both ways. It is a solution of integral form, and we have written integral form, that is yt equal to y0 plus t naught to t fs phi s, y लिखते हैं, अगर y लिखा है तो y लिख दो, y लिखना है phi लिखना है, क्या लिखें हैं? पाई लेने तो सर, पाई पहले ही लिखा हुआ है, तो फिर जाकर लिख होगा इसमें पाई है, y फिर समझ आ जाएगा। तो वहां पे y कर लेना, हमने लिखा था ना पहले, y कर लेना। सो दिस इज ए सॉल्विंग ऑफ आईवीपी। अगर आईवीपी का सॉल्यूशन फाई है तो वो इसका इंटीग्रल फॉर्म का भी होगा, और अगर इंटीग्रल फॉर्म का सॉल्यूशन फाई है तो डिफरेंट गिवन आईवीपी का भी होगा, दोनों वे में ट्रू है। तो फर्स्टली हम आईवीपी ले लेते हैं। सो वी कंसीडर आईवीपी initial value problem, dy by dt equal to f of ty, and y at t naught is y naught. Put a label 1. ठीक है। So let phi या phi of t is a solution of IVP first on any interval I। ठीक है, फाई इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं फर्स्ट का। देन सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो फाई का डेरिवेटिव dy बाई dt लेफ्ट में आ जाएगा। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, ये चाहे आपने लेट y इक्वल टू फाई t ऐसे लिख लो, चाहे लेट y इक्वल टू फाई t इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो dy बाई dt क्या आ जाएगा, फाई डैश t इक्वल टू एफ टी फाई टी। ठीक है, अब ये बताना है कि अपनी डेरिवेटिव पॉसिबल है। सो सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, सिंस फाई इज कंटिन्यूअस on an interval I, and so and f is also continuous on I। सो यानी कि कहने का मीनिंग है कि जो आपने f बताना है, f itself कंटिन्यूस है, जो उसके आर्गुमेंट है फंक्शन के t और phi t वो भी कंटिन्यूस है। सो एवरीथिंग इज कंटिन्यूस। ओके, सो f of t phi t इज कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे मैंने f लिखा है, ty लिखा है, f ये दोनों कंटिन्यूस है तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है f के अंदर। अगर मैंने ty y लिखा है f को तो जीरो में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आर्गुमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कंटिन्यूटी ऑफ आर्गुमेंट एंड f इज इटसेल्फ इज कंटिन्यूस, सो एवरीथिंग इज कंटिन्यूस। तो मतलब कहने का मीनिंग है फाई डैश डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस है तो हेंस इट इज इंटीग्रेबल। ठीक है, इंटीग्रल करना है ना, आपने इंटीग्रल फॉर्म बनानी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो कंटिन्यूस फंक्शन को आप इंटीग्रल कर सकते हो, तो इंटीग्रल कर दो t नॉट टू t, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, फाई डैश, यहाँ आप लिख दो इसको डी फाई लिख दो, dt इधर ले जाओ, इधर डी फाई लिख दो, dt इधर f के साथ ले जाओ, t नॉट टू t एफ एस, लिमिट में t है तो अंदर मैं इसको वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ। तो डी फाई का इंटीग्रल फाई टी माइनस फाई नॉट आएगा, फाई टी नॉट को इधर ले गया मैं राइट में। ठीक है, देन टी नॉट टू टी और फाई टी नॉट
किसके इक्वल है? वाई नॉट के। तो ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म है। इंटीग्रल फॉर्म भी यही थी, वाई टी इक्वल टू टी की जगह फाई आ गया। ओके, सो देयरफॉर phi t satisfy the integral form, satisfy the integral form। इंटीग्रल फॉर्म कौन सी है? वाई टी इक्वल टू वाई जीरो प्लस टी नॉट टू टी एफ एस वाई एस डी एस। पिछले में हमने शायद यहाँ पे फाई लिख दिया था, ठीक है, तो वाई कर लेना उसको ना, ठीक, वाई आएगा दोनों साइड में, वाई में लिख रहे हो तो ये उसी फॉर्म में बन गया, वाई की जगह फाई है यहाँ पे, इंटीग्रल फॉर्म ही बन गया ये। सो फाई टी सेटिस्फाई द इंटीग्रल फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है? सो फाई टी इज ए सॉल्यूशन। सो फाई टी इज ए सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म। सॉल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं ना बहुत बार। ठीक है, अब कन्वर्सली आपने क्या लेना है कि फाई टी इसका सॉल्यूशन है इंटीग्रल फॉर्म का। फाई टी इज ए सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म दिस, जो एंड में लिखा है इसका। तो हमने बैक जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो फर्स्टली यू इंटीग्रेट, नाउ यू गो बैक, यू फाइंड डेरिवेटिव। जैसे हमने कहा था ना कि ये कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबल है, ठीक है, तो बैक आपने जाना है कि इससे आपने इंटीग्रल से डेरिवेटिव करना है। तो इंटीग्रल को रिमूव कर देगा डेरिवेटिव, अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो कन्वर्सली let phi t is a solution of integral form, so that is ये satisfy करेगा। so this is given phi t equal to y की जगह phi t फिट कर दो। okay, so this is a phi sets is a solution of integral form। so differentiation yields डेरिवेटिव दोनों साइड में phi dash t, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इंटीग्रल हट जाएगा, अपर लिमिट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यानी कि इनडायरेक्टली आपने इंटीग्रल हटा देना है, अंदर s की जगह t लिख देना है। सॉरी, ओके, तो ये तो आप क्या लिख सकते हो? phi dash t इक्वल टू f of t phi t, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एंड आल्सो यू कैन चेक phi t नॉट। phi t नॉट क्या आएगा? इंटीग्रल फॉर्म से निकालो इससे, क्या आएगा? y naught y नॉट प्लस t नॉट टू t नॉट, whatever you have, this integral will be 0 from same limit, so this is y naught। ओके, तो आपको ये IBP मिल गई, ठीक है, y की जगह phi है। so therefore phi t is a solution of given initial value problem। ओके, सो जस्ट हमने रीस्टेट किया है। सो
जो कंडीशंस थी, एक बार आपने नॉर्मल डेरिवेटिव से इंटीग्रल पे जाना है तो कंटिन्यूटी इंप्लाइज इंटीग्रेशन, फिर आपने इंटीग्रल से रिवर्स जाना है, डेरिवेटिव पे जाना है, ठीक है। सो सॉल्विंग ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग ऑफ इंटीग्रल फॉर्म बोथ आर सेम, result if and only if. Okay, so applying Picard's method, you can write the solution. ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था कि ये बहुत बार पॉसिबल नहीं है that you can always write the solution. So now I am going to prove main existence theorem. मतलब इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो इतना बता दो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। करेगा किन कंडीशंस में करेगा, दैट वी विल डिस्कस हियर। सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो फर्स्टली एग्जिस्टेंस शो करोगे, फिर हम प्रूव करेंगे यूनिकनेस। सो अंडर व्हाट कंडीशन सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट एंड फर्दर अंडर व्हाट कंडीशन सॉल्यूशन इज यूनिक। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस थ्योरम, आल्सो given by Picard. इसको हम Picard's थ्योरम भी बोलते हैं सिंपली, और आल्सो नोन एज एग्जिस्टेंस थ्योरम, तो है ही नाम इसका पिकार्ड लिंडलॉफ थ्योरम भी बोलते हैं। ये यूरोपियन नेम है तो ओ के ऊपर वो दो बिंदियां लगानी है, ठीक है। Picard-Lindelof theorem. So what is the statement of theorem? Firstly, IVP तो हमने लेनी है, ठीक है। Consider the IVP. जिन्होंने लिख लिया था पिछली बार, कोई बात नहीं, no need to write it again. Consider the IVP dy by dt, वो आगे पीछे हम लिख सकते हैं इसको, f of ty with one condition, y at t naught is y naught. Okay, so what are the condition on f? Let f, simple f ही लिख लेते हैं, ty clear ही है, let f and its derivative with respect to y, f and f curly f by curly y both are continuous on region, रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है, t minus t naught less than a and y minus y naught less than b. A and b both are positive. Okay, then अभी तो हो गया आपकी assumption, अब conclusion क्या है? Then the successive approximations defined by, so first one is phi0 is y0, other one are given by this recurrence relation phi k plus 1 t equal to y0 plus t naught to t f s, जो इंटीग्रल फॉर्म था, phi एक लेबल लगा दो k s ds, और k क्या है नंबर, 0 1 2 etc. So these successive approximations defined by this formula, they converges uniformly on interval I, ठीक है। I इंटरवल कैसा है, t minus t naught लेस देन अल्फा, और अल्फा क्या है, मिनिमम ऑफ जो भी इनमें से होगा a और b by m। a और b हमने ऊपर डिफाइन कर दिए हैं, अल्फा लिखा है इसको, अल्फा on interval I to a solution of IVP where, अब m का बता दो, m नहीं बताया, where
जो f का बाउंड है f ऑफ ty लेस देन और इक्वल टू m, ये भी चलो कह दो ऑन a, उस रीजन के अंदर, बाहर हम बॉदर नहीं करते, ऑन दैट रीजन ओनली। सो f, जो f का बाउंड है वो m है, a क्या है, जो t माइनस टी नॉट लेस देन a। तो अब थ्योरम क्या कह रहा है आपको कि व्हाट आर कंडीशन, कंटिन्यूटी ऑफ f एंड कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अगर ये आपके पास है, रीजन आपका बाउंडेड रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन है, देन दीज अप्रोक्सीमेशंस दे कन्वर्ज टू द सॉल्यूशन, कन्वर्ज टू ए सॉल्यूशन, ठीक है, एंड में कहते हैं ना कन्वर्ज टू ए सॉल्यूशन, प्रॉपर लिखना ना, कन्वर्ज टू ए सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये एक बार आई इंटरवल आई से आगे बता देना जरा, मिनिमम a कॉमा b बाय m वाला पॉइंट फिर से। जिस रीजन में कन्वर्ज करेगा वो रीजन ये होगा, या तो a तक होगा या फिर b बाई m, दोनों में जो छोटा नंबर होगा उस रीजन के अंदर। कि मान लो आपका रीजन ये था, बिग रीजन, ठीक है, हो सकता है कि सॉल्यूशन आपका इसमें ही कन्वर्ज करे, उसके अंदर छोटा हो सकता है, और मैक्सिमम a तक भी हो सकता है, उससे बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो कन्वर्जेंस का रीजन होगा, जो इंटरवल होगा, उसका सेंटर टी नॉट पे है, यही कह रहा है यहाँ पे, टी नॉट पे सेंटर है, तो रीजन क्या बना आपका, टी नॉट माइनस अल्फा से लेके टी नॉट प्लस अल्फा। अब ये अल्फा अगर a के इक्वल है फिर तो पूरा रीजन है, बट उससे छोटा भी हो सकता है, इस पे भी डिपेंड करेगा b बाई m पे, ये प्रूफ के अंदर आएगा ये। So they converge to the solution of IVP। टाइम है हमारे पास अभी? हैं? नो सर हो गया complete। सर 150 पे खत्म हो जाने। अच्छा चलो। So we will continue its proof in next lecture, and I have given you a small हाँ जी। exercise that you need to read uniform convergence। मेरे को बताना अगले वाले में what is uniform convergence and what is Weierstrass-M test, ठीक है, how you check uniform convergence, okay। So we will continue in next class। Okay, bye for now। थैंक यू सर। Okay, बच्चे। Thank you, sir।